In the last class, we were talking about the torque slip characteristics of an induction motor, and we have derived, first of all, we know that rotor current is given by this formula, that is voltage divided by the impedance. The total impedance is nothing but stator resistance as well as the rotor resistance. On the referred side, similarly, the leakage reactance, summation of leakage reactance plus summation of leakage resistance of rotor and stator. Is it clear? And then I have also given the physics definition of the torque, which is nothing but power upon angular velocity. Okay, and power is nothing, the gross mechanical power is what? 3 IR square 1 minus S upon S. Is it clear? R dash 1 minus upon omega n. Is it clear? So at IR dash I am substituting this value. So when you substitute this value, okay, what ultimately you will get? There will be some also omega m has been replaced by 1 minus omega s. Is it clear? Now omega s can also be written as 2 pi f upon ns upon 60. That I have already told you in the last class. I have told you that you can also write down omega s as 2 pi f. This is the definition. Okay, and in place of 2 pi f, f is frequency, I can write down ns by 60. Clear? So just when you substitute it, then what you find that if voltage is kept constant, and the other parameters if remain constant, then this torque is inversely proportional to slip. Okay, so that's how I will get the complete torque speed characteristics. Okay, that is this is my torque and this is the, now see, this is my slip, this is my slip. Okay, slip, or you can say speed also. So in this case I have drawn, this is what is this, 0, 20, 40, 60, 80, 100. It is a percentage of synchronous speed. Okay, and what is this? Slip. Okay, 1.0. So if speed is increasing, slip is decreasing. 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0, minus 2, this. So this is the complete torque speed characteristic of a induction machine. This portion, 0 to this portion, is your motor region, and beyond this is the generator region, and on the negative axis of x-axis it is the braking region. So induction motor can be behaved in 3 forms. What are that? It can act as a motor, it can act as a generator, it can as a braking. However, the best performance of this induction machine is through induction motor. So we will concentrate on this induction motor. So what you find in this? Initially, okay, the torque is increasing. Okay, and now, but what happens? The speed is increasing. What happens? But what about the slip? Slip is decreasing. Initially it was 1. Okay, so that is very clear that if the slip is decreasing and torque is increasing, and therefore it proves the formula. Okay, that torque is inversely proportional to slip. Okay, so if I draw the slip torque characteristics, then what will happen? It goes on increasing. It will, the torque will goes on increasing with the decrement of the slip. Starting from 1, 0.8, 0.6. देखिए ये लिखा हुआ ना 1, पहली स्लिप क्या आई? 1 का क्या मतलब हुआ? 1 का क्या मतलब हुआ? Speed is 0. Sure? Yes, when it is stationary, it has some torque. इसका मतलब जब 0 स्पीड होगी तो इसमें एक स्टार्टिंग टॉर्क होगा. तो स्टार्टिंग टॉर्क है, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज, हमें कोई दूसरा डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है उसको स्टार्ट करने की. आप देखेंगे सिंक्रोनस जो मशीन है, सिंक्रोनस मोटर जो आएगी वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है.
वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। उसके लिए हमें अलग से एक डिवाइस लगाना पड़ता है, या तो उसको हैंड से रोटेट करें और जब तक वो सिंक्रोनस स्पीड रिलीज नहीं करे हम उसको रोटेट करते रहें, और एक बार सिंक्रोनस स्पीड मिल जाएगी तो फिर वो आपस चलती रहेगी। लेकिन हमारी इंडक्शन मोटर, इसलिए इसको कहते हैं इट इज वेरी वर्सेटाइल, इट इज नॉट एन, इट इज सेल्फ स्टार्टिंग। आपको कोई अदर दूसरा डिवाइस लगाना जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब स्पीड जीरो है तो इसको एक, जैसे हमने सप्लाई लगाई वोल्टेज, इसको एक स्टार्टिंग टॉर्क ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो आपने जैसे ऑन किया मोटर, बिना कोई एक्सोलरी डिवाइस के, एडिशनल डिवाइस के आपकी मोटर चलने लग जाएगी। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ये बता रहा है, ये जो पोर्शन है ना इनिशियल, स्पीड कितनी है, यहां पर स्लिप कितनी है 1, और कुछ टॉर्क है कि नहीं है मोटर में। टॉर्क मतलब मोटर अपना सप्लाई ऑन करो और मोटर विल स्टार्ट, ओके। और जैसे 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 स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी, अब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ओके, यानी स्लिप घटती जाएगी, ओके, टॉर्क आपका इंक्रीज होता जाएगा। इट विल रीच टू, अब ऐसा थोड़ी है अरे सर क्या है इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने दो, इंक्रीज होगा मशीन अपना आपको डैमेज कर देगी। एक मैक्सिमम लिमिट तक आपको, भले आपको 5 स्टार होटल में खाना खाने दे दिया जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस दिन है ना 30 बटर की वहां की 5 स्टार की रोटी खा लोगे। इज इट क्लियर? खाओगे तो उतना ही जितना लिमिट है आपकी। तो इट हैज आल्सो लिमिट, एंड दैट लिमिट इज कॉल्ड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड, this is called Tmax. This is called Tmax, which occur at this particular slip. Okay, वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे, वो कैसे निकालना है। अगर मैं आपको वो मैक्सिमम टॉर्क किस स्लिप पे होगा तो कैसे निकालोगे, मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं। एक इक्वेशन दी हुई है, उसका मैक्सिमम मिनिमा क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेटेड टू 0, वो इक्वेशन है, उसको dy बाय dx करेंगे और इक्वेट टू 0 करेंगे। तो टॉर्क की इक्वेशन आपके पास है, तो dt बाय ds करेंगे और इक्वेट टू 0 करेंगे, तो वो जो स्लिप आएगी वो स्लिप क्या होगी, मैक्सिमम टॉर्क को, और उस स्लिप को उस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके मैक्सिमम टॉर्क इस वैल्यू का होगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर? तो हमने, अच्छा मैक्सिमम टॉर्क के बाद क्या होगा, फिर भी स्पीड बढ़ रही है यानी स्लिप घट रही है, इज इट क्लियर? तो अब एक लिमिट के बाद द टॉर्क स्टार्ट डिक्रीजिंग, और डिक्रीज होते 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 जैसे ही स्लिप यानी स्पीड 100% यानी इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड जो होती नहीं है, ठीक है। अगर सिंक्रोनस स्पीड हो गई तो टॉर्क क्या हो गया, 0। टॉर्क क्या हो गया, अरे समझ में आया कि नहीं आया? सो आपको अगर मान लो टॉर्क स्पीड ड्रॉ करने को कहे, कैन यू ड्रॉ इट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला एंड देन से एज पर दिस फॉर्मूला, ओके, द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक स्लिप, एंड दिस इज टॉर्क, ओके, इट विल बी लाइक दिस। कल मैंने आपको यहां से बता दिया था, नो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज कॉल्ड starting torque. So the conclusion is that motor has a starting torque, and therefore there is no need of additional device, prime mover, जिसको हम प्राइम मूवर कहते हैं, लेकिन सिंक्रोनस मशीन में जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर? वो डबली एक्साइट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कौन सी एक्साइटेड है, इंडक्शन मोटर इज ए सिंगल एक्साइटेड मशीन, सिंगल सोर्स एक्साइटेड मशीन। कौन सा एक सोर्स लगाया था, किस पे लगाया था आपने? आपने एक सोर्स लगाया था, कहां लगाया था, स्टेटर पे, स्टेटर की 3 फेज वाइंडिंग पे, रोटर पे थोड़ी लगाया था। रोटर पे तो ऑटोमेटिकली डेवलप हुआ, जबकि आपके सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर को भी लगाना पड़ेगा। और मैं अभी से ही बता रहा हूं, पढ़ाया नहीं है लेकिन अभी से ही बता रहा हूं कि रोटर को भी लगाना पड़ेगा और स्टेटर को भी लगाना, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेल्फ एक्साइटेड मशीन नहीं है। जबकि हमारे, इसलिए इसको वर्सेटाइल क्यों कहते हैं भाई, 2 सोर्स लगाना महंगा हो गया कि नहीं हो गया, फिर एक प्राइम मूवर लगाओ और महंगा हो गया। यहां तो कुछ नहीं, बस प्लग लगाया सॉकेट में, स्विच ऑन किया, मोटर ऑन, तो ये वो बढ़िया है ना। इसलिए हमारे जितने भी, मैं पहले ही कहता था कि जितने भी इंडस्ट्रियल वर्क है, डोमेस्टिक वर्क है, जहां पर 3 फेज सप्लाई की जरूरत हमें अवेलेबल है, वहां पर कौन सी मोटर यूज होगी, इंडक्शन
मोटर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इसका जस्ट मिरर इमेज है इसका जनरेटर। इसका जस्ट मिरर इमेज क्या है? अगर मैं मिरर इमेज यहां एक मिरर लगा दूं, ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा दिखेगा आपके। इज इट क्लियर? जनरेटिंग मोड में कब आएगा? एक इंडक्शन मशीन मोटर की तरह कब काम करेगी? when its speed is when the nr is less than ns. this zone is called मोटर जोन, जो अभी हमने स्टडी किया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? एंड व्हेन इट विल बी जनरेटिंग मोड व्हेन nr विल बी ग्रेटर देन ns। अब इसके लिए आपको एक प्राइम मूवर की आवश्यकता होगी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, कि रोटर तो लेस देन सिंक्रोनस, लेकिन प्राइम मूवर से आपने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, आपने उसकी स्पीड को उस स्पीड को बढ़ा दिया। कितना? सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा कर दिया। सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा करते ही आपका स्पीड क्या हो गई? आपकी अब मशीन किस फॉर्म में वर्क कर गई? जनरेटिंग मोड में। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर यू कैन सी नाउ स्पीड इज ग्रेटर देन 120% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड, 140% ऑफ द सिंक्रोनस। व्हाट अबाउट स्लिप? स्लिप इज नेगेटिव। स्लिप इज नेगेटिव। कैसे? मान लो आपकी सिंक्रोनस स्पीड है 1500 आरपीएम। कितनी है? 1500। ये क्या है? so, कितने पोल्स होंगे? 50 हर्ट्ज पर। if ns is equal to 1500 rpm and f is 50, how many pole it will have? 4 pole। अरे भूल गए? ns कैसे दी जाती है? 120f upon p. This is 50 hertz, this is 1500, what will be p? 4। 2 होगा तो कितनी होगी? 3000। अरे छोटी सी कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या यार? इज इट क्लियर? सो अगर मान लो एक सिंक्रोनस मशीन की सिंक्रोनस स्पीड इंडक्शन मशीन की सिंक्रोनस 1500 आरपीएम है, इज इट क्लियर, और इस मोटर को मैं रन करवा रहा हूं 1006 आरपीएम से, तो बताओ स्लिप कितनी होगी? स्लिप की डेफिनेशन क्या है? S is equal to ns minus nr upon ns. So ns is 1500. What is nr? 1600. So this will be minus 100 upon. So what this indicating? Slip is negative. Slip is, so if our induction machine has a negative slip, it is operating in which mode? It is operating in generating. अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, now what happens? Again the slip characteristic same. It will starting, then it will have maximum value and then it goes on decreasing beyond a particular maximum torque. अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ये वाला आ गया। ये क्या है? ये क्या है? ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में क्या हो रहा है? स्पीड इज नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव मीन्स स्पीड नेगेटिव मीन्स अच्छा, रोटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा था अभी तक, तो मैंने बताया था ना। और वो क्यों करता है उसका रीजन भी दिया था। उसको कौन जस्टिफाई कर रहा था? लेंजेस लॉ, कि वो उसको अपोज करेगा जिसने उसको पैदा किया। इट अपोजेस द वेरी कॉज। इज इट क्लियर? और उस कॉज को अपोज करने के लिए उसी दिशा में घूमेगा जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज में, तो रोटर भी किस डायरेक्शन में घूमेगा? अब मान लो रोटर क्लॉकवाइज में घूमने लग जाए, मैग्नेटिक फील्ड किधर घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड इज किधर घूम रहा है? सपोज किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और रोटर घूमने लग जाए
क्लॉकवाइज में। अब तो रोटर की स्पीड क्या होगी? नेगेटिव। रोटर की स्पीड क्या होगी? नेगेटिव। तो हमारी स्लिप क्या हो जाएगी? स्लिप की वही डेफिनेशन है। ऐसा नहीं है कि अब जनरेटर आया तो अलग हो गई, ब्रेकिंग मोड आया तो अलग हो गई, नहीं। मान लो वही हम लेते हैं 1500 आरपीएम है, मगर अब हमारा जनरेटर घूम रहा है किधर? मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज वो घूम रहा है, मान लो सिंक्रोनस स्पीड से लेस ही घूम रहा है 1400 आरपीएम पे, ठीक है। तो अब स्लिप क्या होगी? माइनस 1400 डिवाइडेड बाय, अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा? स्लिप क्या आएगी? अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 1500 प्लस 1400 कितना होगा? 2900 डिवाइडेड बाय 1500 आरपीएम। तो अब इसका क्या आंसर आया बताइए? 1 पॉइंट। मैंने क्या बताया था? मोटर में स्लिप कितनी होती है? रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ द स्लिप? 0 to 1। अब यहां क्या आ गई? 1 से ग्रेटर और पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लिप। सो पॉजिटिव स्लिप इज इंडिकेटिंग ऑफ ब्रेकिंग रीजन, negative slip is denoting generator action of the induction machine, and 0 to 1 is showing motor reason. अरे समझ में आया कि नहीं आया? And what is the torque slip characteristic? It's just an extension. It is just an extension. ब्रेक में क्या करना पड़ता है हमें? ब्रेक से क्या करते हो आप? गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चला के आए, ठीक है, गाय आ गई, क्या करोगे? सामने उसके स्टंट करके उसको ऊपर से हैं, तो साइड में कट में से एकदम यूं करके ब्रेक लगाओगे। क्या लगाओगे? ब्रेक, ताकि स्पीड धीमे हो जाए, ठीक है। तो वही ब्रेकिंग एक्शन हम मोटर के थ्रू ब्रेकिंग एक्शन भी कर सकते हैं। तो यहां देखिए, व्हाट इज हैपनिंग अबाउट द टॉर्क? टॉर्क इज decreasing. So if you want to have a braking mode of the induction machine, what you have to do? You have to rotate the rotor in the opposite direction of the magnetic field, ठीक है। तो वो ब्रेकिंग एक्शन हो जाएगा। तो वो क्या करेगी? धीरे 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 टॉर्क को जीरो कर देगी। ब्रेक का मतलब क्या होता है? टॉर्क को, टायर के जो टॉर्क है उसको काम करना। सो इट कैन ऑपरेट इन बोथ मोड, जनरेटिंग मोड, motoring mode, as well as in braking mode. So okay, and we have to decide if slip has remain between 0 to 1, it is motor zone. If slip is negative, it is generating mode, and if it is more than greater than, it is braking mode. अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? So this is very important. So this is just through an example it has been shown, okay. So you can see in the motoring mode we have an initial torque, that is called starting torque, that is called starting torque. आप इसका MATLAB में एक प्रोग्राम भी बना सकते हैं, आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसमें प्रोग्राम भी बना सकते हैं। जस्ट आपको क्या क्या देना है? सप्लाई वोल्टेज देनी है, फॉर्मूला आपको मालूम है, एक फॉर्मूला कोई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ना आप? क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं MATLAB में या C लैंग्वेज में, किसी में भी कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू इंसर्ट द इनपुट वैल्यूज, ओके, वेरी वन क्वांटिटी, वेरी, जो हम फॉर लूप नहीं लगाते, फॉर आई की जगह आप एस आई है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? स्लिप, स्लिप को वेरी कर रहे हैं, स्लिप वेरिंग फ्रॉम -10 टू +10 विद इंक्रीमेंट ऑफ +1। तो -10, -9, -8, माइनस फिर 0। तो आपका इस प्रकार का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा जिसमें when slip is 0, okay, it will have a starting torque, it will reach to maximum, and then it goes on decreasing. And if now it goes on decreasing at which mode? At a speed near about full load. यहां पे देखो, यहां क्या स्पीड है? 0 हो जाएगा टॉर्क, मतलब सिंक्रोनस स्पीड। तो इसके आसपास कौन सी होगी? फुल लोड स्पीड। कौन सी होगी? फुल लोड स्पीड। तो फुल लोड स्पीड पे हमारा देखिए इनिशियल में टॉर्क में बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ये हमारा स्टेबल रीजन है, ये ध्यान रखना। ये कौन सा रीजन है? स्टेबल रीजन है। यहां तो फिर भी मोटर अनस्टेबल रीजन में कहलाती है, इसलिए हम
मोटर को हमेशा इस रीजन में ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बियॉन्ड अगर सिंक्रोनस स्पीड से अबव कोई स्पीड हो गई तो वो किस मोड में चला जाएगा, जनरेटिंग, स्टार्ट जनरेटिंग, इट स्टार्ट्स जनरेटिंग। और यदि हमने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया तो द स्लिप विल बी मोर देन 1 एंड इट विल बी इन ब्रेकिंग मोड। S is equal to 1, S is equal to 2. Is this clear or not? While this is 0 to 1, while this is S is equal to -2, -1 and like this. Clear or not? So if you are asked detailed torque slip characteristics, you can draw it with the help of the formula. Also you can explain it that it is inversely proportional to slip. Inversely torque is inversely, if other parameters are kept constant, torque is inversely proportional to slip. Okay. ये वही जो मैंने बताया एक एग्जांपल के साथ समझाया है। टॉर्क स्पीड क्या है, वही है, ओनली मोटर, ओनली ऑफ मोटर। अब देखिए एक लोड के साथ दिखाया, मोटर ने तो अपना काम कर दिया, टॉर्क जनरेट कर दिया, अब उसको एक लोड को बैलेंस करना है, एक लोड को बैलेंस करना है। टॉर्क मैक्सिमम देखो कितना है, सपोज 270, कितना है 270, और लोड हमारा कितना है 150 न्यूटन मीटर। लोड का टॉर्क कितना है 150 न्यूटन मीटर, और ये मैक्सिमम कितना जनरेट कर सकती है 270। तो अब ये 150 न्यूटन, ठीक है, ये कहां स्टेबल होगा, इस पॉइंट पे। आप कहोगे यहां पे भी हो सकता है, लेकिन ये अनस्टेबल रीजन है। ये क्या है, अनस्टेबल रीजन, और ये कौन सा है हमारा स्टेबल रीजन। कुछ फ्लक्चुएशन भी आता है ना तो वापस वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। जबकि यहां अगर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ, अगर थोड़ा सा भी कुछ ऊपर हुआ टॉर्क, तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर एक अनस्टेबल सिचुएशन आ जाएगी। जबकि यहां क्या होगा, कुछ भी लोड में डिस्टरबेंस आता है तो ये मान लो डिस्टरबेंस से सपोज ऊपर चला गया, टॉर्क ज्यादा हो गया, तो भी वापस टॉर्क बैलेंस होकर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। सो दिस रीजन इज कॉल्ड स्टेबल रीजन। अब मैंने क्या कहा था, क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम टॉर्क, और वो टॉर्क कौन सी स्लिप पे होगा। फॉर्मूले वही है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला अभी निकाला था ना आपको, कौन सा, कौन सा, टीमैक्स। टीमैक्स का, टीमैक्स निकालना है हमें, फॉर्मूला कौन सा है, टॉर्क इज इक्वल टू थ्राइस Vs स्क्वायर आर आर डैश अपॉन एस, Vs आर एस प्लस आर आर डैश स्क्वायर प्लस एक्सएल आर डैश स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। इसको अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है टॉर्क का, तो क्या करेंगे, उसको dt बाय ds, वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी यहाँ पर, स्लिप, क्या है स्लिप, तो dt बाय ds इक्वेटेड टू 0, ठीक है। तो वही हमने किया, देखो इफ यू लुक देन व्हाट वी डिड, dt बाय ds इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो हमें स्लिप, मैक्सिमम स्लिप, दैट इज द स्लिप एट द मैक्सिमम टॉर्क कम्स आउट टू बी हाउ मच, आर आर डैश अपॉन आर एस स्क्वायर प्लस एक्सएल आर डैश स्क्वायर। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए, चूंकि देखिए ये थोड़ा सा है ना, कुछ बुक्स में मैंने बताया था कि सिर्फ रोटर साइड के वैल्यूज को लेकर किया है, क्या लेकर किया है, रोटर साइड को लेकर वैल्यूज क्या है, ठीक है। अगर मैं स्टेटर को हटा दूं तो ये सिर्फ क्या आएगा, आर आर अपॉन स्लिप मैक्स टॉर्क इक्वल टू आर अपॉन ठीक है। तो स्लिप किस पे डिपेंडेंट है, जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है किस पे डिपेंडेंट है, रोटर रेजिस्टेंस। और भाई मैं एक बार स्टेटर को सब भूल जाओ, जो भी स्टेटर है, तो पीछे हमारे पास यही बचा, ठीक है। आपके कई बुक्स में इसी प्रकार रोटर के साइड ही डिराइव करके दे रखा है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। वो जो थोड़ा ये जो डैश डैश दिखते हैं आदमी का, तो और ये क्या है डैश डैश डैश, आदमी उसमें ज्यादा खुश रहता है, तो वो भी ट्रू है याद करने के लिए। तो व्हाट यू फाइंड दैट मैक्सिमम स्लिप इज डिपेंड अपॉन, the slip at the maximum torque is depend upon rotor resistance and leakage reactance of the rotor. Is it clear? And when you substitute the slip value
what you will get? T max is equal to 0.5 Vs Rs plus this. So what conclusion you are getting? This is the mathematics, okay, complete mathematics. You can derive it, just substitute the value. Conclusion क्या है? The conclusion is that the slip at the maximum torque is dependent upon rotor resistance. Depend upon rotor resistance. तो अगर रोटर रेजिस्टेंस को आप चेंज करोगे तो आप स्लिप एट द मैक्सिमम टॉर्क को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन अब यहां आप एक और चीज देखें कि यहां थोड़ा सा गौर फरमाएं इस पर। यहां आपको कोई रोटर रेजिस्टेंस दिख रहा है? आर डैश मैक्सिमम टॉर्क पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब द मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस। देखिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टॉर्क पे स्लिप तो किस पे डिपेंड है? रोटर रेजिस्टेंस पे। लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क आया दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है देखने का। अब देखिए जो मैंने सिंप्लीफाई कह रहा था ना आपको, वो सिंप्लीफिकेशन यहां पर भी किया है, ठीक है, कि रोटर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो रोटर रेजिस्टेंस को और उसका मतलब टोटली स्टेटर इंपीडेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसका स्टेटर का रेजिस्टेंस भी और स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस दोनों को नेग्लेक्ट करते हैं। और बुक्स में यही मिलेगा आपको, कई बुक्स में। सिंपली किसको लिया है? रोटर सर्किट के पैरामीटर को, ठीक है। तो चीजें और आसान हो जाती है। तो देखिए टॉर्क को जैसे हमने सॉल्व किया तो कितना आया? आर अपॉन, वही मैंने लिखा था ना, यहां पर लिखा था ना। तो इससे कंक्लूजन आ गया कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। क्लियर? एंड ऑल्सो टी मैक्स की वैल्यू देखिए कितना है? थ्राइस वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ओमेगा एक्सएल। कहीं आर दिख रहा है? आर यू सीइंग एनी आर टर्म देयर? इट मींस द मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इसको हमें निकालना है स्टार्टिंग टॉर्क। क्या निकालना है? स्टार्टिंग टॉर्क, उसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो हमें मालूम है स्टार्टिंग टॉर्क में स्लिप कितनी होती है? 1। भाई एनआर कितनी होगी स्टार्टिंग पे? 0। तो एनएस माइनस 0 अपॉन एनएस कितनी आएगी? 1। तो वो एस इज इक्वल टू 1 रखूंगा। सो दिस इज माई स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा कर दूं, एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे जो स्लिप, जो मुझे मैक्सिमम टॉर्क है वो मुझे स्टार्टिंग में मिले, क्या मिले? मुझे मैक्सिमम टॉर्क कब मिले? स्टार्टिंग में। तो मैं क्या करूंगा? मेरी स्लिप कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम टॉर्क पर? 1। और 1 का मतलब आर आर डैश अपॉन एक्सएल आर डैश शुड बी इक्वल टू 1। और आर आर इज इक्वल टू एक्सएल। अगर रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू रोटर लीकेज रिएक्टेंस के बराबर होगी तो मुझे मैक्सिमम टॉर्क कहां मिलेगा? स्टार्टिंग में। कहां मिलेगा? स्टार्टिंग में। तो ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है ना आपको यूनिवर्सिटी में भले एग्जाम में नहीं पूछा, मगर ये है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं आपको। दे स्टार्ट टू गेट द मैक्सिमम टॉर्क एज स्टार्टिंग कंडीशन। ए, rotor resistance should be high compared to leakage reactance, rotor resistance should be equal to leakage reactance, rotor resistance should be low like this। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? the rotor resistance should be equal to rotor leakage reactance। this is the conclusion। आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में prove that in order to obtain, prove that for to get maximum torque at starting condition the slip should be equal, the rotor resistance should be equal to leakage reactance। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया। तो आपको इनिशियल से चलना है क्या? पहले कि रोटर करंट इतना होता है, टॉर्क इतना होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर dt by ds किया, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क कम्स आउट टू बी आर आर अपॉन एक्सएल आर, ठीक है। नाउ टू हैव दिस स्लिप एट स्टार्ट टू हैव मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग कंडीशन, स्लिप शुड बी इक्वल टू 1, इक्वेटिंग टू स्लिप s इज इक्वल टू 1, वी गेट दिस मच। अरे समझ में आया कि नहीं आया ये बात के बाउंस हो रही है?
अब ये बातें हैं हमारे, कुछ बातें लास्ट। इन स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर सर्किट। ठीक है, तो हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं इन बातों से कि यदि रोटर में कोई मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दूं तो मैं स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क कैन बी वेरिड, क्योंकि स्लिप इज डिपेंडेंट ऑन स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इज डिपेंडेंट ऑन रोटर रेजिस्टेंस। तो रोटर में अगर मैं कुछ रेजिस्टेंस करके उसकी स्लिप को चेंज कर सकता हूं। दूसरी बात, द स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी वेराइड, स्टार्टिंग टॉर्क को भी वेराइड कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड वेरिएशन कैन बी ऑब्टेन, कैसे? बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सब चीजें कैसे कर सकते हैं? यदि मैं रोटर में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दूं, ठीक है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं? स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क कैन बी वेराइड, starting torque can be varied, speed variation can be obtained, and also the starting current can also be reduced. Starting current can also be reduced. Okay, so however the maximum torque is independent upon the speed change हो सकती है, slip change हो जाएगी, is it clear? Starting torque change हो जाएगा, लेकिन maximum torque change नहीं होगा। अरे समझ में आया क्या नहीं? ये कंक्लूजन है किससे कि हमारी अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में लगाता हूं, तो आपसे पूछ लिया भाई में, आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया इंडक्शन मशीन में, क्या क्या चेंज हो सकता है? क्या मैक्सिमम टॉर्क चेंज होगा? नो। स्पीड चेंज कर सकते हो? यस। कैन यू रिड्यूस द रोटर करंट? यस। कैन यू वेरी द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क? यस। एंड कैन यू वेरी द स्टार्टिंग टॉर्क? यस, but you cannot change the maximum torque. अरे समझ में आया कि नहीं है? So this is a very important conclusion. अब इस फिगर से देखिए आप, अलग अलग मैंने रोटर रेजिस्टेंस लिए, ब्लू वाला रोटर का रेजिस्टेंस कितना है? 2.2 ओम, रेड का 1 पॉइंट रिड्यूस कर दिया, ठीक है, और इसका बिल्कुल भी ब्लैक का और भी रिड्यूस कर दिया। तो देखिए so I am just concluding. You can see maximum torque is same in most of the case. Okay, by changing the resistance maximum torque is same. Slip is different. यहाँ पे maximum torque यहाँ हुआ है, यहाँ maximum torque यहाँ हुआ है, और यहाँ maximum torque यहाँ हुआ है। You got my point? So through this figure I have explained you that by changing the rotor resistance you can change the slip, but maximum torque remain constant. Okay. So that's all for today. Okay, in the next class we will take more things.